हाँ, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा। आपको अनम्यूट करने को बोलूंगा, थोड़ा अपने बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। ओके, प्लीज। हम आस्किंग, हाँ। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। वैसे तो मैं अब पूना में हूँ, मगर आई एम दिल्ली बॉर्न, सो मेरा एसोसिएशन दिल्ली के साथ तगड़ा है। हम्म। मगर आई एम अ विक्टिम ऑफ सीओपीडी एंड आई एम टीचिंग योगा फॉर द लास्ट 50 years एंड इट इज माई फुल टाइम प्रोफेशन। हम्म। But this Ayurvedic approach of Bala uh, has not ever reached me very directly, because in proper yoga training program, whether it is Hatha Pradipika or Patanjali Sutras, they are not involving the six balas in a formal way. So I think it is, so far as you are concerned, your strength is Ayurved based stimulation of trying to strengthen the bala. I think that is something phenomenal. See, the first principle of Ayurveda, the first principle of Ayurveda is yatha balam tatha chikitsa. So it says, straight away says, the kind of bala your body has, that kind of recovery your body will do. So the first thing is, your body can recover, and your body only can recover. आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, दुनिया में कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती. Now, increasing the bala using some kind of an external substance cannot happen. You can't increase your bala through food. You can't increase your bala through medicine. It can help. It can create a conducive situation for your body to actually increase the bala. है ना? आप भोजन करते करते कमजोर ही होते जाते हैं, ताकतवर कोई नहीं होता. 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, कमजोर हो गया, ताकतवर तो नहीं हुआ. So, in you specifically, the problem is samana dosha, samana vayu dosha. What is Saman Vayu dosha? The distribution of material in the body. The distribution of material in the body is not proper, right? If the distribution doesn't happen properly, then there are parts which will get enough, there are parts which will not get enough. Apart from that, in your mind, there will be a tendency to come back to yourself more rather than uh, using your body to do activities across. So the pushing factor of the body is less. So it will be more conducive for, or you would want yourself to remain with yourself more than to actually interact with more and more people. For you, it will be comfortable to live alone and to be within yourself, because the body is not able to throw the energy outwards. The pulling factor, the pulling of your energies inwards is more. This is called as samana dosha. The distribution of food will also not be proper, and samana dosha also creates a difficulty in terms of how your lung actually alveoli, the tissue of lung actually inflates and deflates. Because samana dosha, it will not be able to inflate properly. And outward distribution is weak. So the alveoli of lungs will not be able to inflate properly. There will be more tendency to deflate. The inflation will be weak. Your inhalation is weak. The factor of inhalation is weak. Along with it, the absorption factor in your body is also weak. Now, can it be corrected? Yes, it's very easy. Samana dosh can easily be corrected through Kumbhak. And we will customize your module according to what we diagnose in Pranashakti diagnosis. It's not very difficult to treat this thing, but then you have to come to the core or the root of the problem. Satish Kumar ji, can you hear me? Satish Kumar ji, are you suffering from any respiratory problem? First, give me a thumbs up to say yes. Okay, so I can spotlight you and you can quickly tell about your problem.
अनम्यूट करें, अनम्यूट योरसेल्फ. आपकी रोशनी उल्टी तरफ में है. Light is Can on I the speak? back side. Yeah. Hello. Your face is not visible Hello, clearly. can I speak? Because here that network problem is there, sir. That's the even here I'm continuously I cannot witness this program also. Okay. Some Should I network take another problem. person or should we continue, Swamiji? No, I'll speak to you. No, no, no. Hello. Okay. Hello. Yeah, you can go ahead. Go ahead and speak. Yes, my name is Satish Kumar. I'm 70 years old. See, now breathing problem is there, so problem. Because after this, my nature of work was extensive traveling. For about 45 years, I was on marketing this one, traveling entire South India. So food, everything was not proper. But suddenly in 2019, during the pandemic, once I fell unconscious. Then they said, I checked up with the doctors and all, some nervous issue. From there it started. Now, even if I walk little, my breathlessness is there. I cannot climb the stairs and all. That is my main problem. So just try to understand where Yes. is where the problem lies. First of all, your prakriti, the nature of your body is vata prakriti. Vata prakriti means the pressure deviation of your body will be more. The pressure in the body will deviate a little more. And because the pressure gradient of the body is in a certain state of deviation, the mind will always remain jittery and continuously it will be on. Even in terms of you sitting somewhere still will be difficult, and a lot of activities, moreover, because you were traveling also. A person who is a Vata Prakriti person, if he travels more, the Vata actually increases. The disturbance actually increases. That is why in this culture, for a certain kind of people, we have made traveling as nisheda. Don't travel more. Now, Vata Prakriti also have a problem, chronic problem of constipation, because the flow factor is not proper. In the body, the flow is not very consistent. It is like up and down, up and down, up and down. So, not being able to gain weight is a very much character of Vata Prakriti. Whatever you do will not be able to gain weight or gain mass. And with age, the Vata dosh also increases. So the problem, where is the problem? The pressure in the body is not consistent. It is fluctuating. The fluctuating pressure will impact the lungs very fast, because lungs deal with pressure fluctuation directly. So if the pressure fluctuation happens, the lung will get into a fluctuation mode. And you can call this by any name. If the alveoli or if the lung is not able to function, it will do everything to function properly. Now, Vata Prakriti person also easily gets into smoking habit. Very easily. Why? Because smoking helps Vata Prakriti. Right? Smoking helps Vata Prakriti. Now, even if somebody is not smoking, the lungs will actually try to control the jitteriness by accumulating some kind of sleshma or kapha. An obstruction will get created. Obstruction in the lung is basically a protective mechanism to control the jitteriness of lung function. So this fat or this sleshma or kapha actually stops the fluctuation. But then over a period of time, even breathing, if the accumulation is more, the breathing becomes very difficult. So coughing will happen to throw out the kapha which got accumulated. Now, this accumulated kapha can easily get into infection because this is food. Kapha is basically food. For all the microorganism also, this is food. So a little infection because of the chronic obstruction, COPD, right? Or some kind of a
infectious disease like tuberculosis. Somebody asked tuberculosis. The heat factor in the body is less in Vata Prakriti person. The heat of the body is always less. They get impacted by cold more. So when the heat factor in the body is less, infection, the chances of infection is more. Because body treats infection by heating itself up. 5-degree rise in temperature will kill every kind of a virus. The problem also is that the moment you get into fever, you pop in a paracetamol pill. You don't allow the body to treat itself. So, stabilizing the Vata Prakriti or the pressure gradient of the body is the solution to this problem. Pressure can only be created by breath hold. It cannot be created otherwise in the body. So, Kumbhak is the only methodology to correct Vata. Right? Ayurveda also has stuff which actually handles Vata, but it doesn't increases your body's innate strength to handle Vata. So Kumbhak is a method to increase that innate strength of the body to handle Vata. And that is why you will see the moment you will start doing Kumbhak, suddenly ease in the body will increase. Stability will increase. Mental fluctuation will decrease. The detox factor of the body will increase. The lung capacity will keep on increasing. Your breath will become easy. For Vata people, breath is jittery. That means it's not very fluent, very flowing. The moment you will start doing Kumbhak, the breath will become flowing. Mind will also calm down. And you will be, the tolerance of the body will increase and you will be able to cope with any kind of a situation, specifically people who are traveling a lot. Kumbhak can help them tolerate any kind of a external situation or food or whatever they are consuming in terms of information also. Right. So Vata dosha, what is the controlling factor? Kumbhak. Vata dosh can only be controlled through Kumbhak. सीमा जोशी जी, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं सीमा जोशी जी? आपको कोई प्रॉब्लम है अस्थमा? पहले थम्स अप देंगे सीमा जोशी जी? हाँ जी, ओके। मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा, आप अनम्यूट करेंगे और थोड़ा सा अपने बारे में प्रॉब्लम बताएंगे क्विकली। तो हम आपसे, हाँ, अनम्यूट करें जरा। आपको आईएलडी है, ऐसा है? आईएलडी है आपको, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं स्वामी जी। इनको आईएलडी है, सो हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। इनकी प्रकृति ना कफ वात है। ये जो आपके अंदर आईएलडी है, ये क्या है? ये कफ वात दोष है। कफ वात दोष का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा और समझते हैं। आईएलडी में ये आपकी प्रॉब्लम क्यों है? आपको बचपन से अगर आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को, तो आपके शरीर में कफ ज्यादा बनता था हमेशा। मटेरियल कफ होता है। जब शरीर भोजन को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो सबसे पहली चीज क्या पैदा करता है? प्लाज्मा, कफ। वही कफ जब यूटिलाइज होता है, शरीर में इस्तेमाल होता है, तो इसको हम रस भी कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से टिश्यूज बनते हैं उसके बाद में। मगर ये कफ मलाई की तरह है। चाय की छन्नी में जैसे ही आप चाय छानते, मलाई ज्यादा हो गई तो छन्नी बंद हो जाएगी और उसमें चाय नहीं छनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर डालना पड़ेगा। ऐसे प्रकृति के लोगों में ना हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर में कोई चीज ना फैल नहीं रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जाम हो रहा है ना? कफ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा क्योंकि शरीर में गर्मी नहीं है। जठराग्नि आपकी बहुत कमजोर है, डाइजेशन हमेशा कमजोर रहा और हमेशा एसिड रिफ्लक्स होता होगा। ऐसे लोगों में क्या होता है? एसिड ऊपर की तरफ में उठ रहा है, सिर दर्द, माइग्रेन, ग्लूकोमा, इस तरीके की सिचुएशन आती है। कई लोगों में एडी में बड़ा दर्द होता है। वो सोएंगे, उसके बाद में जमीन पे पांव रखने में बड़ी मुश्किल होती है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, मतलब बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। थायराइड की जैसी कंडीशन होती है ना, वो भी कफवात दोष है, वैसी भी कंडीशन आती है। या लंग में अगर कमजोरी है, तो वहां पे लंग की टिश्यूज बार बार खत्म होते हैं, नए बनते हैं, वो नए नहीं बन पाएंगे।
वो नए बन नहीं पाएंगे। अब चाय की छन्नी में चाय जम गई, आपने क्या करना होता है, ऊपर से एक चम्मच से दबा दीजिए, वो छन जाती है। प्रेशर डालोगे तो छन जाएगा, प्रेशर डालते ही छन जाएगा। तो आपके शरीर में कोई चीज फैल नहीं रही है, तो प्रेशर क्रिएट करेंगे तो फैलने लग जाएगा, या फिर हार्ट प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, या हार्ट रेट वेरिएबल यानी टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं ऐसे लोगों में। हार्ट रेट की भी प्रॉब्लम रहती है, मतलब कई बार क्या होता है कि उनको कॉन्टिन्यूसली हार्ट रेट ज्यादा फील भी होता है, एंजाइटी जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। मगर लंग अगर फंक्शन ना करे प्रॉपरली, क्योंकि उसमें कफ विकार आ गया और नए सेल्स जनरेट करने में दिक्कत आ रही है। इसका दो तरीके से इलाज है। पहला, आप अपनी बॉडी में कॉन्शियसली प्रेशर ग्रेडियंट को ठीक करें, क्रिएट करें। कुंभक से ही क्रिएट हो सकता है प्रेशर, और कैसे भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको जो करना है वो गर्मी शरीर में जितनी पैदा करेंगे उतनी जल्दी ये चीज ठीक होगी। शरीर की जठराग्नि, मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना पड़ेगा, जठराग्नि बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाने का तरीका भी कुंभक आ गया। मगर अगर बाहर से कुछ सपोर्ट लें, बाहर से कोई भी दवाई जो है सपोर्ट हो सकती है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। चाहे वो केमिकल दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे वो फूड हो, वो आपकी बल वृद्धि नहीं कर सकता, आपके बलों को नहीं बढ़ा सकता। आपके शरीर में जितना बल है उसको सपोर्ट कर देगा, उसको सपोर्ट कर देगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आईएलडी का क्या है? कुंभक। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप चाहे वो बाहर से, आप अगर कफ ज्यादा जम रहा है लंग में तो उसको निकालने के लिए कोई इस तरीके एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं, या फिर एनेस्टाइलसिस्टीन आप नेबुलाइज कर सकते हैं, नाक नाक के साथ में नेबुलाइज कर सकते हैं। वो सपोर्ट करेगा, लेकिन वापस बन जाएगा, वापस बन जाए। और लंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपको इनहेलर लेना पड़ेगा, फिर तो आप स्टेरॉइड पे आ जाएंगे। स्टेरॉइड तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, सपोर्ट हो सकता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। आपको सपोर्ट लेना है तो थोड़े टाइम के लिए लीजिए, लेकिन मूलभूत बल वृद्धि, आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ाना तो आपका काम है, वो तो आपको कुंभक के जरिए होगा। तो कुंभक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, किसी भी लंग इशू का प्राइमरी ट्रीटमेंट कुंभक है। सेकेंडरी में आप चाहे वो किसी भी तरीके का मेडिसिन इस्तेमाल करें, नेचुरल, केमिकल, या फिर आप बाहर से कुछ और फूड को भी एज ए सपोर्ट ले सकते हैं। कुंभक प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा इसका। स्वामी जी, वी विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस। दिव्या जी, क्वेश्चन टाइप कर दें चैट बॉक्स में, because there's a limit to how many people we can have a one-on-one interaction with. So we have, ma'am, I do not know your name, A.S. Ray. So she has said that while she's keen on joining the program for minor things like allergies and digestive issues, her main uh, interest is spirituality or spiritual growth. So will Kumbhak help her in spiritual growth? I hope I've got your answer, question correctly, ma'am. Yeah. See, what is spiritual growth? Can you define spiritual growth? I don't know people can even define spiritual growth. But let me tell you, if you handle your life properly, spirituality is a byproduct of living life fully. इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम योर लाइफ। आपको स्पिरिचुअल लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ को सेपरेट करेंगे तो फिर वो कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। ये गति जो है ना, एक ही लाइन में है। आप जिएंगे ठीक से तो स्पिरिचुअलिटी इज एन एंड रिजल्ट, अपने आप ही रिजल्ट होगा। इसको ऐसे मान के चलिए, ऊर्जा को नीचे की तरफ में आयाम देना वर्ल्डली लाइफ होती है, इसको ऊपर की तरफ में आयाम देना योगा या स्पिरिचुअलिटी होती है। तो पहले आप जीना सीख लीजिए, जीना सीखो, हाउ टू लिव एम्पावर इन एन एम्पावर्ड मैनर। आप जीवन को एक्सपीरियंस करना सीखिए। जिस दिन आपका एक्सपीरियंस की इच्छा खत्म हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप एक गुरु के पास भी जाएंगे, अगर वो आपको इनिशिएट कर देंगे, आपकी ऊर्जा उठ तो सकती नहीं, प्रारब्ध इतना हैवी है, कैसे उठ जाएगी? तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। लोग बाग आजकल आश्रम चले जाते हैं क्योंकि भाई संसार में कंपटीशन ज्यादा है। आश्रम में फ्री का खाने को मिलेगा, ऐसा लगता है कुछ करने को मिलेगा नहीं वहां पे। सब शांत होके एकदम परम
क्या कहते हैं, आनंद को प्राप्त हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे अगर ऐसा आपने किया भी। और यू कैन गो एंड सी, आप जाके देख सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी और संसार दोनों अलग अलग नहीं है, इसको पहले समझिए। अगर आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो मुझसे अलग अलग से आके मिलो, क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी नहीं दे रहे किसी को, है ना। आपको पहले तो मैं भी चेक करूंगा ना आपको कि सच में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, फैशन है, फैशन की वजह से आ रहा हो। आजकल तो टिक मार्क लगाना चाहते हैं, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने योगा किया, मैंने ये किया। तो इज इट रियली दैट यू वांट? हाँ। बाकी अब मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताता हूं। हैविंग सेड इट, ये सब बोल दिया मैं। नाउ कुंभक विल एम्पावर यू टू लिव अ वेरी एम्पावर्ड लाइफ। ठीक है। इस तरीके से कुंभक ही आपको रियल स्पिरिचुअलिटी की तरफ में डायरेक्ट करेगा। स्पिरिचुअलिटी ना तो मुश्किल है ना तो आसान है। इसका समय आया कि नहीं ये देखना पड़ेगा। हाँ? हम इसे मुश्किल बनाते जा रहे हैं। वी आर मेकिंग स्पिरिचुअलिटी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें लगता है एक मंत्र जाप कर लिया मैंने तो मैंने स्पिरिचुअलिटी कर ली, मैंने एक गीत गा लिया, हाँ, कोई भजन कर लिया, कोई कव्वाली गा ली तो मैंने स्पिरिचुअलिटी कर लिया। ये सब फैसिनेशन है, ये सब ना फैसिनेशन है। सो इफ यू लिव वेरी एम्पावर्ड, स्पिरिचुअलिटी विल हैपन ऑटोमेटिकली। और इस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मैं आपको मीठे में लपेट के एक कड़वी गोली ही दे रहा हूं। ठीक है। अल्टीमेटली इट विल पुश यू टू स्पिरिचुअलिटी इन अ मैनर यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड, है ना। तो मीठे में लपेट के कड़वी गोली खिलाई जा रही है, मगर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये कड़वी है। तो पहले मीठे का स्वाद लो, कड़वापना तो अपने आप ही आ जाएगा। Thank you, Swamiji, for that wonderful, wonderful explanation, which many people look for, or ways that they chase. And I think that's a very, very nice and clear answer. We'll come back to the world of disease right now, leaving spirituality aside for the time being. So there are many questions about nasal polyps. Can Kumbhak help in come out of nasal polyps? The nasal polyps has a certain correlation with the difficulty in breathing. आप देखिए, कोई भी एक चीज ना आपकी लाइफ के हर एक चीज के साथ में कनेक्टेड होती है और हम इसे कनेक्ट कर नहीं पाते। दैट इज व्हाई यू विल सी इन टुडेस वर्ल्ड वी डोंट नो द रीजन ऑफ एनी डिजीज। आपको मालूम है, वी डोंट नो द रीजन फॉर एनी क्रॉनिक डिजीज। वी डोंट नो द रीजन ऑफ डायबिटीज, अस्थमा, लंग इश्यू, आईएलडी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, एंड नेम इट। हमको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि जीवन की परतें इतनी गहरी हैं कि आप उसको बाहर से देखने की कोशिश करोगे तो अलग दिखाई देगा, अंदर से देखने की कोशिश करोगे तो अलग दिखाई देगा, और दूसरी तरफ से कोशिश करोगे तो अलग दिखाई देगा। इसी को माया कहते हैं। माया का ट्रांसलेशन गलत है, इल्यूजन नहीं है माया। माया इज नॉट इल्यूजन। माया मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी वेयर इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। आप जहां से देखोगे वहां से अलग दिखाई देगा। So by translating certain things into a system which doesn't have a vocabulary for those kind of stuff, we have distorted everything. We have distorted spirituality, we have distorted health, we have distorted even देखो, आसानी से जीना कोई मुश्किल काम नहीं थी आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले। आज मुश्किल हो गया। वॉट एवर सक्सेस यू अचीव, बट योर लाइफ इज बिकमिंग मिजरेबल। वी आर नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली। तो कभी भी जीवन का खोर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको सोल्यूशन नजर आता है। पॉलिप्स के हमारे पास में टेस्टिमोनियल्स हैं, बल्कि पॉलिप्स के ऐसे बंदे हैं जो कि इनके पॉलिप्स कुंभक करके ठीक हो गए। बट देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विल रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन टिश्यू फॉर्मेशन इन योर बॉडी। इसको क्या कोरिलेट कर पाएंगे आप? वो बहुत आसानी से कोरिलेट होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विल क्रिएट डिफिकल्टी इन टिश्यू फॉर्मेशन इन योर बॉडी।
And polyps is a tissue formation which has got deviated because of deviated breathing at a certain part of the body. इसको आसान कर लीजिए, पॉलिप चला जाएगा. इसका दूसरा पक्ष मैं बता देता हूं. देर इज अ स्ट्रेंथ इन योर बॉडी विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ. शरीर अपने आप का स्ट्रक्चर बना के रखता है ना, वो स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, स्किन स्ट्रक्चर, वो बना के रखता है. ये स्ट्रक्चर बना के रखने की उसकी एक शक्ति होती है जिसे व्यान शक्ति कहते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यान शक्ति. ना दिस इज बेसिकली, व्यान शक्ति को अगर हम प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे तो इट इज अ रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. आपका शरीर कितना रिलैक्स कर सकता है उसे व्यान शक्ति कहते हैं. अनदर वे टू अंडरस्टैंड व्यान शक्ति इज द डिटॉक्स स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. शरीर कितनी गंदगी तेजी से निकाल सकता है उसको व्यान शक्ति कहते हैं. अगर व्यान शक्ति कमजोर है और गंदगी, खराब टिश्यूज नहीं निकल रहे हैं तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा. पॉलिप्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अनवांटेड सेल जिसको कि एक कवरिंग दे देती है बॉडी, उसके फॉर्म में हो सकता है. सिस्ट के फॉर्म में हो सकता है. बॉडी में इसको सिस्ट कहते हैं. तो जब द डिटॉक्स स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी इज नॉट ओके, then there will be an accumulation or overgrowth or some kind of a deviation in the tissue formation. व्यान शक्ति प्रैक्टिकल रूप में सांसों के टर्म्स में इनहलेशन, होल्ड एंड एक्सहेलेशन की शक्ति है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक नंबर में आप इनहेल करते हैं तो उसको कम से कम 4 times मोर होल्ड करके 2 times मोर एक्सहेल अगर कर पाए, दैट मीन्स सपोज यू आर इनहेलिंग फॉर 5 seconds, होल्ड फॉर 20 seconds, 10 second एक्सहेलेशन शुड बी इजी फॉर यू. If it is not easy, you have a weak Vyana Shakti. You make it better, your Vyana Shakti will return. And that's how your detox process will become fine. Tissue accumulation will go down. And you'll see the polyps will settle down. But it will not happen tomorrow. It will not happen after a month. It might take 6 months or a year or 2 years also, depending upon the momentum of disease that you have accumulated. But then, is there any other way? There is no other solution. There is no other alternative. So थक हार के आपको यही करना पड़ेगा. तो मैं कहूं इससे पहले आप दुनिया घूम के आओ, देख लो कि इसका सोल्यूशन कहां मिलता है, उसके बाद करना. बट तब तक आपकी शरीर की हालत कैसी होगी ये भी आपको देखना पड़ेगा. Okay, so I think there are many questions which are being asked about क्या मैं inhaler छोड़ पाऊंगी? Divya ji is asking that. Another person is asking, can I lead a ILD free life? I have pulmonary hypertension, so doctors have told me it's a right heart failure. Will I be able to overcome this problem? And I can also see some people who are sitting here with continuous oxygen support. So will people on inhalers, with people with ILD, with people with COPD, do they have a hope of coming out of not just their condition, but to lead a chemical medicine-free life? Swamiji, your words on that. How many people you want to see who have left their inhalers by doing Kumbh? There are many, many, many. You can be one, but you will have to give some time to yourself. You will have to be committed to yourself first. है ना? अपने लिए आपको committed होना पड़ेगा. आधा घंटा 40 मिनट अपने लिए दीजिए और फिर देखिए आपकी केमिकल सारी खत्म हो जाएंगी. हम आपको कितने ही लोग दिखा सकते हैं. पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत आसानी से जा सकता है, बहुत आसानी से जा सकता है, मगर दवाई से नहीं जा सकता, गारंटी है. दवाई से नहीं जा सकता. दवाइयों से ही हाइपरटेंशन हम क्रिएट कर रहे हैं इस दुनिया में. Blood pressure, any kind of hypertension, increasing or decreasing in the world? Increasing or decreasing? Increasing. So whatever we are doing in terms of treatment, that treatment itself is creating more and more heart attacks, more and more hypertensive conditions, including pulmonary hypertension.
इसको मैं आपको बड़ी आसानी से समझा भी सकता हूं, बट ये यूनिवर्सिटी क्लास हम बनाने लग जाते हैं, विच इज नॉट ओके। कुंभक इज अ वेरी वेरी big umbrella and a very deep science. If I explore Kumbhak for next 10 years, I'll be just scratching the surface. It is so vast. And your life is so multifaceted and complex that you open one end, it will open 10 more ends. आप ना, ये इन्फिनिटी जैसा है, आप एक खोलेंगे 10 और खुल जाएंगे और आगे जाते जाएंगे। और एलोपैथी कितना जानता है हमारे शरीर के बारे में? नॉट इवन 1%। नॉट इवन 1%। People who do not know the reason for any disease, they are treating everybody in this world. They are treating everybody who don't know why this is happening. So we need to look at health and disease from a completely different perspective. Unless and until we do that, we'll not be able to come to any solutions. ना आइडिया से सॉल्यूशन नहीं आते। आप कितने भी आइडियाज दिमाग में बना दो, किताब पढ़ के आज तक कोई समझदार नहीं हुआ है ना। किताब पढ़ के बेवकूफी हुआ है आजकल, आज तक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ होते हैं, बुद्धू होते हैं। तो आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत आसान है निकलना। दूसरी बात, केमिकल फ्री, किसी भी तरीके की केमिकल फ्री आईएलडी या इस तरीके की चीजों से क्या निकला जा सकता है? बिल्कुल निकला। योर बॉडी कैन एक्चुअली ट्रीट एनी एंड एवरी काइंड ऑफ डिजीज। दैट इज हाउ योर बॉडी इज डिजाइंड। आपके शरीर का डिजाइन ही ऐसा। मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू विल पुट डीजल इन अ पेट्रोल व्हीकल? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? जरा हाथ उठाओ। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? कोई भी नहीं डालेगा। आपका शरीर केमिकल कंजम्पशन के लिए डिजाइन हुआ था क्या? मगर इसमें तो बड़ी मजे से डालते हो केमिकल्स। यहां पे कॉमन सेंस कहां चला जाता है? तो इन द नेम ऑफ साइंस हम तो लोगों को ठग रहे हैं ना, टैग लगा रहे हैं साइंस का। देयर इज नो साइंस इन हाउ वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी। बट वो साइंस का टैग लगा, क्योंकि बिकती ज्यादा है, साइंस का टैग लगा तो बिकेगा ज्यादा। बट देन यू विल नॉट गेट हेल्प। आप क्या ठीक हो जाएंगे? दुनिया को तो देखो, एविडेंस तो देखो। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज बीन एबल टू कम आउट ऑफ अस्थमा और लंग इश्यूज बाय टेकिंग एनी मेडिसिन। इनलर छूटा किसी का क्या? हम आपको दिखाते हैं कितने के इनलर छूट गए, 10 दिन में छूट जाते हैं। तो विदाउट प्रूफ आप आंख बंद करके एक ऐसा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट देता ही नहीं है। वो तो खुद बोलता है कि ट्रीटमेंट नहीं है। आपके डॉक्टर साफ साफ आपको बोलते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ये जिंदगी भर लेना पड़ेगा, फिर भी आप वहीं लाइन पे लगा के जाते हो। यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए तो आप चले जाइए, ठीक है, मगर परमानेंट ट्रीटमेंट वहां से नहीं मिलेगा। सो यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडी। मैं आपको साफ बताऊं, भगवान आके आपको ठीक नहीं कर सकते। भगवान भी आ जाए ना, प्रकट हो जाए सामने, नहीं ठीक कर पाएंगे, साफ बता रहा हूं। गेट इट वेरी क्लियर। आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, कोई आपको ठीक नहीं करता। यू एम्पावर योर बॉडी विल करेक्ट इटसेल्फ। इट हैज बीन डिजाइंड फॉर दैट। इसका डिजाइन ही ऐसा है। बिल्कुल आप निकल जाएंगे, सभी दवाइयों से निकल जाएंगे। एक एम्पावर्ड लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ आप जी पाएंगे। Swamiji, you just mentioned the word university class. I think it has stimulated a reaction from somebody who has described Puraka, Rechaka, and all Kumbhak, how Kumbhak is used in pranayam, Bahay Kumbhak, Antar Kumbhak. Many people think that the Kumbhak that we are talking about is that. Actually, we are talking of something else. We've tried to explain it also, how it is part of our everyday activity, our every physical, mental, emotional activity. I think, would you like to say something on that? Then we can move on. देखो देखो, दिस इज नॉट योगा, दिस इज आयुर्वेद, ठीक है ना। द योगा हैज केप्ट, योग कलाचार हैज केप्ट कुंभक। योग कलाचार भी कुंभक को इस्तेमाल करता है। आपके हाथ पांव है ना, तो हाथ पांव अगर योगा इस्तेमाल करेगा तो हाथ पांव योगा बन जाएगा क्या? योर ब्रीदिंग, इफ योगा यूजेस ब्रीदिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, देन ब्रेथ बिकम्स योगा।
Kumbhak is what you are doing every day. You are using it. It's a dynamic key to your life. इसके बगैर आप हिल भी नहीं सकते, ठीक है ना? बट दैट इज व्हाट आई सेड. एक किताब पढ़ लिया, उसके बाद में आपने नाम बता दिया, बट यू व्हाट इज, हाउ डज इट मीन एनीथिंग? Ayurveda is different. Yoga is 180-degree opposite. Yoga is for moksha, mukti, enlightenment, self-realization, nirvana, kaivalya, super consciousness, and whatever you can call. Do you want that? समाधि चाहिए किसको? कितने लोगों को चाहिए? मुक्ति चाहिए? मैं आसान तरीका बता दूंगा मुक्ति का. चाहिए योगा चाहिए? कितने लोगों को योग मतलब मुक्ति, मुक्ति चाहिए? कितने लोगों को मुक्ति चाहिए जीवन से? I'll tell you why do yoga. There are many easy methods. चाहिए? कितने मंजिल की आपका वो मकान है? जरा ऊपर चढ़ के मुक्ति पालो ना, नीचे कूद के जहर खा लो, मुक्ति मिल जाएगी. इतना योगा करके मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति किसी को भी नहीं चाहिए. परेशान हो गए तो मुक्ति चाहिए. अब बीवी से परेशान हो गए, बीवी से छुटकारा चाहिए, तो मुक्ति चाहिए क्या आपको? काम से परेशान हो गए, बड़ा बर्डन है, सारी इतनी सारी चीजें फॉर्मेलिटी करने. अरे यार, आपने लाइफ ही मुश्किल कर दी, तो इसमें मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या करेगी? आपको लाइफ से अगर थोड़ा इजी चाहिए तो आप क्लियर कट हो जाइए चीजों में. नोबडी वांट्स मुक्ति, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू योगा. किताब तो उठा लो, किसी योगा की किताब तो उठा लो. व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ योगा? यही बताया ना, समाधि. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. पतंजलि का अष्टांग योग क्या है? समाधि देगा आपको. समाधि चाहिए क्या? आपको लगता है समाधि रसगुल्ले की तरह है? जैसा मैंने टेस्ट किया, शायद बहुत बढ़िया टेस्ट करेगा. यू डोंट नो व्हाट इज समाधि, बट यू वांट इट. व्हाई? बिकॉज समबडी हैज सेड दिस वर्ड. फैशन है, फैशन. इनफैचुएशन हो जाता है. लगता है कि ये ऐसी चीजें छूट ना जाए. पता चला कि सभी को समाधि हो रही है, यहां पे मेरे को समाधि नहीं हो रही. अरे किसी को भी समाधि नहीं हो रही. नकल कर लीजिए, इससे बढ़िया तो एक्टिंग कर लो थोड़ा. आनंद ही आनंद है सब. नोबडी वांट्स मुक्ति. यू वांट बेटर लाइफ. यू वांट बेटर लाइफ. You want a good body which can experience things. You want to live healthy. You don't want disease. आप ज्यादा जीना चाहते हैं, तो योगा का रिजल्ट तो मुक्ति है. योगा कुंभक को इस्तेमाल करता है मुक्ति के लिए, स्पिरिचुअलिटी मुक्ति के लिए. आयुर्वेद इस्तेमाल करता है शरीर में स्थापित करने के लिए, संसार में स्थापित करने के लिए. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, योगा एंड आयुर्वेदा. सो व्हाट वी आर टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, नॉट योगा. वात पित्त कफ, प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल मैनेजमेंट. तीन चीज समझो. वात पित्त कफ, प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल मैनेजमेंट. प्रेशर टेम्परेचर से ही मटेरियल मैनेजमेंट होता है. फिजिक्स का नियम है, फिजिक्स का नियम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डज मटेरियल मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट आयुर्वेदा इज टॉकिंग. प्रेशर इज कुंभक, कुंभक से ही टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है. प्रेशर एंड टेम्परेचर, वात एंड पित्त कंट्रोल्स कफ, मटेरियल मैनेजमेंट होता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग. पूरक, रेचक और ये आपका योग कलाचार वाला आप नियमावली दिखा रहे हैं, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है. पूरक रेचक से ही कुंभक होता है. कुंभक उसमें ऑप्शन ही नहीं है. हड्डियां होंगी तभी हाथ आप कंट्रोल कर पाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है. बट हाउ वी आर डीलिंग इट, उसको हम क्या करवा रहे, किस दिशा में करवा रहे हैं? हम योग की दिशा में कुंभक नहीं करवा रहे. हम आयुर्वेद की दिशा में कुंभक, आपकी एज बढ़ाना चाहते हैं, आयु बढ़ाना चाहते हैं, आयुर्वेद की डायरेक्शन में कुंभक करवा रहे हैं, विच इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. Thank you, Swamiji, for taking out time and for some of the questions that people grapple with, giving such wonderful explanation.